Hello, my dear student. I am Professor Harshan Likam, Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. Dear student, welcome in our videos lecture of ONS subject. So after completing our two units, which is based on introduction of optical fiber and second one is optical losses, now we move into our third unit, which is based on optical components. So let's start with our departmental vision, mission and program educational objectives. Here it shows the vision of our electronics and telecommunication department. The vision is to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineer. ये हमारे डिपार्टमेंट का विजन है। मीन्स आप इसको गोल ऑफ डिपार्टमेंट भी बोल सकते हो। तो ये जो विजन यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का, ये आपको बताता है कि जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फील्ड में, वो हमें अचीव करना है, वो भी डिप्लोमा इंजीनियर्स तैयार करके। और इस विजन को अचीव करने के लिए हमने मिशन स्टेटमेंट सेट किया है। तो लेट्स सी द विजन मिशन स्टेटमेंट ऑफ आवर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। Here I represent the mission of Electronics and Telecommunication Department. The mission is having 5 in number for achieving the vision statement of our department. The very first mission is imparting quality education for to meet society and industry needs. यानी क्वालिटी एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा आपको दिया जाएगा, और वो भी जो सोसाइटी की नीड्स होंगी या फिर इंडस्ट्री की नीड्स होंगी उसके द्वारा। मिशन 2 स्टेटमेंट इज प्रोवाइड इथिकल एंड आउटकम बेस्ड एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट। यानी इथिकल और आउटकम बेस्ड एजुकेशन आपको दिया जाएगा। इनकलकेटिंग क्रिएटिव थिंकिंग through innovation and co and extracurricular activities among the student। आपको क्रिएटिव थिंकिंग इम्प्रूव करने के द्वारा जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ हम अरेंज करेंगे उसके द्वारा हम विजन स्टेटमेंट अचीव कर सकते हैं। फोर्थ मिशन इज इन्हांस द लीडरशिप स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी और हायर एजुकेशन। लीडरशिप स्किल इन्हांस करना या फिर एम्प्लॉयबल आपको बनाना या फिर हायर एजुकेशन के लिए आपको सुटेबल करना, इस तीनों क्वालिटी की द्वारा हम अपना विजन स्टेटमेंट अचीव कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज सीकिंग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे आपका बहुत ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा फोकस करेंगे। सो विद दिस 5 mission statement we can definitely achieve our vision statement that we discussed in previous slide. Now we move on to program educational objectives in next slide. Here this slide shows the program educational objective. Means after completing your diploma, after 2 or 3 years, this program educational objective is achieved whenever you going for in the industry or whenever you going at higher studies. The program educational objective is very first one is PEO1. This PEO1 means program educational objective 1, that represent provide socially responsible environment friendly solution to electronics and telecommunication engineering related broad based problem adapting professional ethics. Second one is adopt state of the art
electronics and telecommunication engineering broad-based technologies to work in multidisciplinary work environments. And third one is solve broad-based problems individually and as a team member, communicating effectively in the world of work. So through this program educational objective, we can definitely achieve our mission as well as our vision statement. Now, this slide shows the course outcome and its PO mapping. The course outcome for our this third unit is select relevant architecture of optical network of गिवन एप्लीकेशन, यानी जो भी गिवन एप्लीकेशन है उसके लिए अपने को रिलेवेंट यानी उस एप्लीकेशन के लगने वाला आर्किटेक्चर सिलेक्ट करना है बाय यूजिंग रिलेटिव कंपोनेंट्स एंड इट्स प्रोग्राम आउटकम मैपिंग इज see this is shows the program outcome mapping and course outcome mapping. Okay, so here I mentioned total 7 number of POs. This is the 7 number of POs starting from PO1 to PO7, and this is the mapping 3 which shows the high level, 1 which shows the low level, and 2 which shows the moderate level. Means if I giving explanation onto this PO1 with the course outcome mapping at a level 3, then PO1 which is related to the discipline knowledge, that discipline knowledge means our departmental knowledge. So this PO1 which is based on the discipline knowledge is mapped with this course outcome at a level 3. Okay, so this is all related to the course outcome and PO mapping. Similarly, this PO2 to PO7 as per new NBA guidelines. So we are having now only 7 number of POs. So this course outcome is mapped with this the 7 number of POs. So now let's start our today's topic, that is optical component. Dear student, welcome in our today's video session, which is based on unit number 3, and this unit number 3 is based on the optical networks, and from that unit we are going to start the very first topic, that is optical network and component. So let's start with our today's learning outcome, which will see in our next slide. So here this slide shows the learning outcome of our today's video lecture session. So after completing our today's session, the learners will be able to describe the features of optical amplifier, यानी जो भी हम ऑप्टिकल एम्पलीफायर यूज़ करने वाले हैं एज ए नेटवर्क कंपोनेंट, उसके क्या टाइप्स है, क्या फीचर्स है, ये आज कल वीडियो लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो. सेकंड वन इज स्टेट द टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल एम्पलीफायर. ऑप्टिकल एम्पलीफायर के कौन कौन से टाइप्स है वो भी आज इस लेक्चर के बाद आप बता सकते हो. थर्ड, स्टेट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल एम्पलीफायर. ऑप्टिकल एम्पलीफायर के क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, ये आज का सेशन कंप्लीट होने के बाद आप अच्छी तरीके से बता सकते हो. सो दीज आर सम लर्निंग आउटकम फॉर अवर टुडेज सेशन. सो लेट्स स्टार्ट with our next slide for our today's topic. So here I mentioned some introduction related to the optical amplifier. Means this slide will explain what is the exact meaning of optical amplifier and why it is used in optical fiber communication. So let's start some introduction based on optical amplifier. So I mentioned one point here. This point is explained as
in order to transmit signal over long distances, means up to the 100 kilometer or greater than 100 kilometer, it is necessary to compensate for attenuation losses within the fiber. मतलब अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन करना है तो फाइबर के अंदर से जो भी लॉसेस होते हैं, अटेन्यूएशन लॉस होते हैं, उसको कंपनसेट करना बहुत ज़रूरी है. Initially, this was accomplished with an optoelectronic module consisting of an optical receiver. यानी पहले हम इसको अकम्पलिश करते थे यूजिंग ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल, जिसमें एक ऑप्टिकल रिसीवर रहता था और रीजनरेशन एंड इक्वलाइजेशन सिस्टम रहती थी, एंड ऑप्टिकल ट्रांसमीटर टू सेंड द डाटा. यानी ऑप्टिकल ट्रांसमीटर डाटा को सेंड करने के लिए हम यूज़ करते थे पहले. बट जैसे ही ऑप्टिकल एम्पलीफायर आया तब उसने उसको रिप्लेस किया. मतलब क्या रिप्लेस किया? अल्दो फंक्शनल दिस अरेंजमेंट इज लिमिटेड बाय द ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल कन्वर्शन. यानी ये जो अरेंजमेंट थी जो हमने प्रीवियस पॉइंट में देखा था, यानी इस पॉइंट में देखा था, वो क्या करते थे? ऑप्टिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते थे और इलेक्ट्रिकल का फिर से हम ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे. तो ओनली कन्वर्शन इज़ पॉसिबल. बट जब भी हम अभी ऑप्टिकल एम्पलीफायर जो आगे पढ़ेंगे हम, उसके क्या मेरिट्स है, यानी क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, क्या फीचर्स हैं, वो जानने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्यों हमने ऑप्टिकल इलेक्ट्रिकल कन्वर्शन या फिर इलेक्ट्रिकल का कन्वर्शन ऑप्टिकल में जो हम करते थे वो हमने क्यों रिप्लेस किया. ये हमें आगे फीचर्स पता होने के बाद अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो. बट टिल इस स्लाइड तक आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब भी हम लॉन्गर डिस्टेंस के लिए जाते हैं तो हमारी जो ऑप्टिकल सिग्नल की क्वालिटी है वो डिग्रेड होती जाती है, यानी उसमें अटेन्यूएशन लॉस आते हैं. उसको कंपनसेट करने के लिए हमें सिग्नल की स्ट्रेंथ फिर से रिपीटेटिव मोड में जाकर हमें कांस्टेंट रखना ज़रूरी है. तभी हम ट्रांसमीटर से लेके रिसीवर तक हमारे सिग्नल प्रॉपर पहुंच सकते हैं. Now here I mention some of the types of optical amplifier. This is very important because this question is asked in previous exam also. Means what is the type of optical amplifier? So the types of optical amplifier is semiconductor optical amplifier, which is called as SOAS amplifier, मतलब semiconductor optical amplifier in short. Second one is fiber Raman and Brillouin amplifier, and third one is rare earth dope fiber amplifiers, which is called as EDFA, means erbium doped fiber amplifier, which is used for 1500 nanometer, and parasidomide means PDFA, which is used for 1300 nanometer. So from these two means semiconductor optical amplifiers and EDFA amplifier means erbium doped fiber amplifier is generally used in optical fiber communication. So in our today's session we just look into the semiconductor optical amplifiers and EDFA amplifier. So we will discuss the characteristics or features of semiconductor optical amplifier first. Now here it shows the characteristics or features of SOA, means semiconductor optical amplifier. The very first characteristics is polarization dependent, means सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर ये पोलराइजेशन पे डिपेंड होता है, यानी इट रिक्वायर्स पोलराइजेशन फॉर मेंटेनिंग द फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन. रिलेटिवली हाई गेन, यानी इसमें बहुत ज़्यादा गेन होता है, अप्रॉक्सीमेटली 20 डेसिबल. आउटपुट सैचुरेशन पावर इज 5 to 10. लार्ज bandwidth,
मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ होती है, कैन ऑपरेट एट 800, 1300 एंड 1500 नैनोमीटर वेवलेंथ रीजन, यानी 800 हो या फिर 1300 1500 नैनोमीटर पे वेवलेंथ रीजन में भी अपना ऑप्टिकल सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर ये ऑपरेट हो सकता है। नेक्स्ट वन इज इट इज़ कॉम्पैक्ट एंड इजीली इंटीग्रेटेड विद अदर डिवाइसेस, मीन्स ऑप्टिकल यानी सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर जो है वो इजीली इंटीग्रेटेड हो सकता है विद अदर डिवाइसेस लाइक केबल्स, जब हम स्प्लाइसेस करते हैं उस जगह पे भी, या फिर स्प्लाइसर हो, इन सभी ऑप्टिकल कंपोनेंट के द्वारा हम ऑप्टिकल यानी सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर को इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एरेज, यानी सिक्वेंसली जो भी हमें कंपोनेंट यूज़ करना है जिसको हम एरे बोल सकते हैं, उसमें भी हम सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर को इंटीग्रेटेड कर सकते हैं। हाई नॉइज फिगर एंड क्रॉस टॉक लेवल्स ड्यू टू नॉन लीनियर फिनोमिनॉन सच एज 4-wave मिक्सिंग। हाई नॉइज फिगर एंड क्रॉस टॉक लेवल ड्यू टू नॉन लीनियर फिनोमिना सच एज 4-wave मिक्सिंग, यानी इसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ फिगर होती है और क्रॉस टॉक की लेवल भी इसमें बहुत कम होती है, जिसमें 4-wave मिक्सिंग रहने वाली है। नाउ हियर आई मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EDFA, मीन्स एर्बियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर के यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसी को हमने बोला है एडवांटेज जो यहाँ पे हमने मेंशन किए। The very first advantage or characteristics is high power transfer efficiency from pump to signal power, and which is having up to greater than 50%, यानी इसकी जो पावर ट्रांसफ़र एफिशिएंसी है फ्रॉम पम्प टू सिग्नल पावर, यानी जो भी हम ऑप्टिकल एम्पलीफायर पढ़ेंगे उसमें आपको एक चीज़ पढ़ने को मिलेगी कि वहाँ पे हम सिग्नल को पंप करते हैं, तो वो सिग्नल की जो पंपिंग पावर ट्रांसफ़र एफिशिएंसी होती है वो रहेंगी हाई, विच इज़ हैविंग अप टू ग्रेटर दैन 50%. सेकंड वन इज़ वाइड स्पेक्ट्रल बैंड एम्पलीफिकेशन with relative flat gain which is greater than 20 decibel, and it is useful for WDM application. WDM application means it is wavelength division multiplexing, यानी प्रीवियसली जो भी हमने कोडिंग टेक्निक्स पढ़े हैं लाइक CDMA वगैरह, या इस सभी जो कोडिंग टेक्निक हमने डिजिटल कम्युनिकेशन में पढ़े हैं, वैसे से यहाँ पे ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में हम जो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज़ करेंगे वो होती है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. थर्ड वन इज सैचुरेशन आउटपुट इज ग्रेटर दैन 1 milliwatt, which is also called as 10 to 25 decibel meter. Then gain time constant long, which is greater than 100 millisecond to overcome patterning effects and intermodulation distortion. Gain time constant EDFA एम्पलीफायर में बहुत ज़्यादा होता है और वो ओवरकम करता है इंटरमॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन को. नेक्स्ट वन इज लार्ज डायनामिक रेंज. इसकी रेंज जो होती है वो बहुत ज़्यादा रहेंगी और डायनामिक. लो नॉइज़ फिगर, इसमें नॉइज़ बहुत ही कम आएगा इसलिए नॉइज़ फिगर इसमें कम होता है. पोलराइजेशन इंडिपेंडेंट, जैसे कि SOA एम्पलीफायर जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है वो पोलराइजेशन डिपेंडेंट होता है, बट EDFA ये पोलराइजेशन इंडिपेंडेंट है. एंड इट इज़ सुटेबल फॉर लॉन्ग हॉल एप्लीकेशन, यानी लार्जर डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हम ज़्यादातर EDFA एम्पलीफायर यूज़ करते हैं. सो दिस ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स is very important related to the EDFA amplifier. Here, now this slide shows the disadvantage of EDFA amplifier. The very first disadvantage of EDFA amplifier is relatively large devices, means up to in the range of kilometer, and it is not easily integrated with other devices. यानी जैसे कि
हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए EDFA एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, बट इसमें इजीली इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। यानी EDFA एम्पलीफायर का कनेक्शन अदर कंपोनेंट के साथ करना एट अ लॉन्गर डिस्टेंस बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ EDFA एम्पलीफायर। सेकंड वन इज ASE. ASE means it is amplified spontaneous emission, and there is always some output even when no signal input is applied. Means हमने कोई भी अगर इनपुट अप्लाइड नहीं किया तभी भी EDFA एम्पलीफायर कुछ आउटपुट शो करता है, एंड दिस लॉस इज कॉल्ड एज अ स्पॉन्टेनियस लॉस और स्पॉन्टेनियस नॉइज। क्रॉसटॉक इफेक्ट, जनरली इसमें क्रॉसटॉक इफेक्ट आता है। गेन सैचुरेशन इफेक्ट, गेन इसमें कांस्टेंट नहीं रहेगा, गेन सैचुरेट होते रहता है। So after looking the characteristics of SOA amplifier or features of SOA amplifier, and then after that characteristics of EDFA amplifier and disadvantage of EDFA amplifier, I hope you understand very well these characteristics and features. In our next lecture we will look into the splicers components. Thank you so much.